नमस्कार। आप सभी का इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी द्वारा आयोजित आयुष समृद्धि यात्रा में स्वागत है। आपके मार्गनिर्देशन, आपके कोऑपरेशन, गाइडेंस की वजह से आज हम 776th एंड 77th वेबिनार का आयोजन कर पाने में सक्षम हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। फिर से मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर, प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी, प्रोफेसर वैद्य पारुल जोशी जी और आज के स्पीकर जयंत जी, उर्वशी जी, पारुल जी भी स्पीकर हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। पारुल जी से प्रार्थना करता हूं कि डांस चूंकि महिलाओं का विषय ज्यादा है तो उस पर भी हमें 5 मिनट आशीर्वाद दें। मैं प्रोफेसर विष्णु प्रसाद शर्मा जी से आग्रह करता हूं उनके स्वागत प्रवचन का। Namaskar. Good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on albinism, concern, and care. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Meera K. Bhojani, Associate Professor, Department of Kriya Sharir, All India Institute of Ayurveda, New Delhi. Madam, namaskar and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Jayant Nagar, Assistant Professor, Department of Sastravidya and Yoga, Subhadip Ayurved Medical College and Hospital, Indore. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Vaidya Parul A. Joshi, ex-principal and superintendent, Sri Bala Hanuman Mahavidyalaya from Gandhinagar. Namaskar, madam, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Ashish Phadke, clinical hypnotherapist, Chief Ayurveda and Yoga consultant, Ayurvision Center for Ayurveda and Panchakarma Therapy, Navi, Mumbai. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Alok Sharma, Director, Anand Ayurved Hospital from Marriott. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on albinism, concern, and care. And I declare that evening webinar is open. Namaskar, over to Pavanji. थैंक यू वेरी मच सर। मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से प्रार्थना कर, आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर एन श्रीधर हमारे प्लेटफॉर्म पे है। वेलकम डॉक्टर एन श्रीधर, वेलकम। Thank you, sir. Good evening, one and all. गुड इवनिंग। Please do join every day whenever you have time. Yes, sir. Thank you. Thank you. अग्निहोत्री सर। Thank you, Professor Parun Sharma ji. Namaskar सभी को. Really, no doubt, as our country is full पहले of तो आपका आभार सर, आपका आभार। पता नहीं कौन पवन कुमार के पीछे एक जाम्बवंत गुरु थे। वो जब शक्तियां याद दिलाते थे तब शक्ति याद आती थी। मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब ये समझ नहीं पा रहे, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे में वेबिनार की तैयारियां हो जाती है आजकल। बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट कहाँ हम लोग 2-2 हफ्ते पहले से टॉपिक और गेस्ट स्पीकर तलाश लेते थे, आज 15 मिनट तो बहुत गजब हो रहा है। So we were talking that as our country is full of diversities, so is our world, and each
on every date there is a new topic, and eventually we are also become habitual to utilize it to engage ourselves with that topic that day, and resultantly we are here again on 600 this step, when we are going to talk about the International Albinism Awareness Day. You see, previously it was a tough time to say anything on this issue, जिसको हम कहेंगे रंग भेद नीति, कि वो गोरा है, वो काला है, क्या है, अब जो शब्द हट गए, अपार्थाइड से लेकर पूरा जो कॉन्सेप्ट बना वो इतना हो गया। अब हम विभेदकारी नीति नहीं रखते हैं, हमारे ये इच्छा रहती है कि एक गॉड की कर्ज कहिए, गिफ्ट कहिए या व्यवस्था कहिए, सिंपल बेस्ड ऑन द either the characteristics of the genes or the lack of the proper or regular quantity of the our pigments which leads to that extent. लेकिन रंग भेद से या केवल कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस से हमारे दिलों में, दिमाग में, मस्तिष्क में कोई भेद की भावना नहीं होती है। और इस भावना के साथ में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा खान पान कैसा हो, हमारा हैबिटेट कैसा हो, हमारी सोच कैसी हो, जो इसमें कुछ अवेयरनेस लाई जा सके या इसमें कोई प्रिवेंटिवली कोई अप्रोच हो सके। आयुर्वेद के लिए ये सामने खुला चैलेंज भी बनता है, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के सुनने के लिए आज हमारे पास एक गैलेक्सी ऑफ गेस्ट स्पीकर्स हैं, जो अपने पूरे अनुभव और ज्ञान के आधार पर वो हम लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। तो हमारे सभी गेस्ट स्पीकर्स का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ साथ हमारे जो प्लेटफॉर्म पर आज हमारी डिग्निटीज जुड़ी हुई हैं, और स्पेशली प्रोफेसर सिद्धार्थ जी का जो बहुत ही दिनों बाद आए हैं, उनका स्वागत है। और दूसरा टॉपिक जो आज हम लेने जा रहे हैं वो नेशनल डांस डे है। इस पर तो केवल इतनी चर्चा करनी है कि पूरे शरीर से नृत्य की प्रक्रिया ही परफॉर्म की जाती है। उसमें अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, होल बॉडी, कटी चालन, मस्तिष्क और मन, और इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और इंसोम्निया की ये बहुत बड़े ट्रीटमेंट है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, मसल पावर अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, सब कुछ होती है। लेकिन लास्ट में प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने एक वाक्य बोला, मैडम पारुल जोशी जी आपका स्वागत है, आपके आशीर्वचन मुझे राष्ट्रीय नृत्य दिवस के मनाने में भी चाहिए, केवल इसलिए कि आप महिला भी हैं। तो ऐसा एकाधिकार नहीं, पुरुष भी बहुत अच्छे अच्छे नृत्यक रहे हैं और दखलंदाजी रखते हैं। हाँ, इतना अवश्य आपका सुपर हैंड है कि सभई नचावत राम गुसाई, नाचत नर मरकट की नाई। तो मरकट की नाई मैंने बंदर के समान नचाने में महिलाओं का पूरा योगदान हो जाता है, जिससे कि वो उसी हिसाब से अपना दायित्व पूर्ण करते हैं परिवार के लिए। तो उस विचारधारा से आपका अपहरण है, और इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ में आप सबका स्वागत करते हैं। हम सोचते हैं हमारे पहले गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मीरा जी शायद जुड़ने में कुछ समय लग रही है, कुछ है, तब तक प्रोफेसर पवन जी अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे कि आगे। धन्यवाद। प्रोफेसर नाम लेते ही हाजिर, जय हो जय हो। नहीं सर, मैं पहले ही जुड़ गई थी, बस हाँ, आप अच्छा पार्टिसिपेंट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, तो हम लोग परेशान थे कि आपका पहला नंबर पर है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अगले संप्रेषण के लिए माइक को प्रोफेसर पवन शर्मा जी को वापस करते हैं। नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मीरा भोजानी जी की आज दूसरे बार दर्शन हो रहे हैं। एक बार चरक के संबंध में हम लोग मिल चुके हैं, आपकी बड़ी कृपा। शॉर्ट नोटिस में हम लोग ये सब वेबिनार्स अरेंज करते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि रोज एक नया दिन है। रोज सुबह उठते ही यूं लगती है कि आज कौन सा दिन बनाना है। आज एल्बिनिज्म डे है, और वो भी एक कंसर्न भी है, और उसकी केयर किस तरह से हम कर सकते हैं, ये दोनों ही चीजें बड़ी जरूरी हैं। हमारे हाथ में उसको पलटने की, कुदरत के नियम को पलटने की कुछ भी उम्मीद नहीं है। जो हुआ है वो हुआ है, वो कंसर्न भी हो सकती है, उसकी हम केयर भी कर सकते हैं। तो आज ये टॉपिक पर हम आपके आशीर्वचन इस मंच को सुनना चाहें। आदरणीय डॉक्टर मीरा भोजानी, स्वागत है जी। थैंक यू सर। आदरणीय वी के अग्निहोत्री सर, पवन सर, और भी जुड़े हुए जो महानुभाव है,
वैद्य पारुल जोशी जी है, उर्वशी मैम है. I can also see Nishant Shukla. After so many years, I'm able to see him. We used to learn together at CP Shukla ji, and everyone present over here, and जो भी हमें YouTube से भी सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार. और सर ये तो हमारा सद्भाग्य है कि आप में ना आपातकालीन स्थिति में याद कर लेते हैं, और जब जहां तक हो सकता है हम जरूर उस बात को जस्टिस कर पाए, इस तरह का प्रयास किया है. हालांकि आज जो पावर पॉइंट हमने बनाई है बड़ी ही गड़बड़ में, या आप कहे कि इमरजेंसी में ही बनाई हुई है, बट होपफुली ये क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए भी है, सर बोल रहे थे, और आयुर्वेद की जो फ्रेटर्निटी है उसके लिए भी है ये व्याख्यान. तो यहाँ कहें कि इंटरैक्शन, तो इस तरह से ही इसको लिया गया है. तो आपकी अनुमति से स्क्रीन शेयर करें हम, इफ यू से सर. Yes, ma'am, please. You are now co-host. Yeah. Thank you, sir. I hope my screen is also visible, sir. Yeah. जी, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना सर? यस यस मैडम जी. तो आज का जो व्याख्यान है ये इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के संदर्भ में रखा गया है. द केयर एंड कंसर्न, केयर विद कंपैशन फॉर द अल्बिनिज्म, जो जैसा अभी सर ने कहा कि हमारे हाथ में नहीं, आयुर्वेद में भी अष्टोनिंदितीय चरक ने बताया, उसमें अति गौर जो बताया है, पूरा जो चरक का अष्टोनिंदितीय अध्याय है उसमें विशेषतः निंदित बताए दो, वो है स्थूल और कृष्ण, और उनकी चिकित्सा बताई. कहीं भी अति गौर अति कृष्ण इसकी चिकित्सा बताई नहीं, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और उनमें क्योर से ज्यादा केयर महत्वपूर्ण होता है. और जिस तरह से ये अल्बिनिज्म को एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है, तो इट इज द राइट स्टेप कि उसके लिए अवेयरनेस जनरेट की जाए. So why do we mark the international days, maybe for the camps or maybe for the awareness? These international days and weeks are occasion to educate the public on issues of concern, to mobilize the political will and resources to address global problems, and to celebrate and reinforce achievements of humanity. जैसे अभी सर ने कहा कि रोज नए नए डे आ जाते हैं, सो जैसे अभी इंटरनेशनल योगा डे आएगा, तो these all days they remind us something. It is not that ki we should only celebrate that day on one particular day, like today it is International Albinism Awareness Day 13th June, बट ये इसको रोज थ्रू आउट कंटिन्यू करने के लिए एक दिस इज ए सॉफ्ट रिमाइंडर कि इसको हमें इस तरह से अवेयरनेस हमेशा के लिए बनाए रखें. So International Albinism Awareness Day is celebrated annually on June 13, and the purpose is to raise awareness about albinism, which is a genetic condition that affects the production of melanin. It aims to dispel myths and misconceptions surrounding the albinism. बहुत सारे misconceptions है, जैसे these people of albinism, they are considered as ये श्रापित माने जाते हैं, या इनको फिर कुछ जो तांत्रिक विद्या है उसके लिए बलि दिया जाता है. These are all the myths and misconceptions not only being practiced in India but even globally, even in the developed countries, the so-called developed countries like America, वहां पर भी इसको एक दाग की तरह, स्टिग्मा की तरह माना जाता है. जो आज सर ने मुझे मौका दिया तो इसके ऊपर बहुत सारा मैं दोपहर से पढ़ रही थी, एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि
there are so many people suffering from albinism throughout the globe. और जो डेवलप्ड फॉरेन कंट्रीज है उसमें भी इसको एक स्टिग्मा माना जाता है और नरबली ऐसे लोगों की ओर दी जाती है आज भी. दिस इज ऑल द प्रैक्टिसेस आर ट्रूली गोइंग ऑन. So the theme for the year 2023 for albinism awareness is inclusion is a strength. The problem is these people, ये जो अति गौर या अल्बिनिज्म है उनको समाज से बाहर कर दिया जाता है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है. So the main challenge is to include them, and this way it will bring their self-esteem back, and this will give them the strength. So this year's theme, inclusion is the strength, builds on last year's themes, united, making our voices heard. Its aim is to ensure the inclusion of the voices of persons with albinism in all sectors of life. And later on in this slides, we will see that in all sectors of life, even the accomplished people, some of them are having or they are suffering from albinism. So collaborating and embracing albinism within the disability movement and in other sectors where decisions affect persons with albinism, and seeking synergies with human rights, इसको एक मानवीय अधिकार दिया जाए. उनको पहले ही कुदरत से एक मार पड़ी होती और हम उनको सामाजिक तौर पे बार बार प्रताड़ित करते, तो इसके लिए ये एक मूवमेंट है. So International Albinism Awareness Day is, so as albinism is a rare non-contagious, ये ऐसा भी नहीं है कि ये फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, बस ये कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं लगता. कभी हम जैसे हम अंग्रेज लोग हमें काले मानते थे, उसी तरह से ये जो बहुत गौर है, गोरे हैं, उनको भी श्रापित माना गया. दिस इज अ जेनेटिकली इनहेरिटेड डिफरेंसेस प्रेजेंट एट बर्थ. इसमें इन आत्माओं का, जीवात्माओं का कोई रोल नहीं होता. इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ अल्बिनिज्म बोथ पेरेंट्स मस्ट कैरी द जीन for it to be passed on. या तो दोनों पेरेंट्स अल्बिनिज्म वाले होंगे या they will be the carrier for albinism, तभी बच्चों में आता है. even if they do not have the albinism themselves, पेरेंट्स में नहीं भी हो, but if they are carriers, it can be passed on to the next generation. The condition is found in both the sexes, male female दोनों बच्चों में होता है, regardless of ethnicity, किसी भी देश में होता है, and in all countries of वर्ल्ड. तो बेचारों के जीवन में से रंग, उनकी चमड़ी का रंग कुछ इस तरह से उड़ जाता है और सब कुछ सफेद हो जाता है उनके लिए. So what is albinism? As in today's public, sir was asking me that there may be even the lay people also watching this. So let us see in brief what is albinism. Albinism results in lack of pigmentation, melanin in the hair, skin and eyes, causing vulnerability to the sun and bright light. जैसे आयुर्वेद में भ्राजक पित्त कहा गया है चमड़ी में, जो रंग देता है, तो ये भ्राजक पित्त का यहाँ पर लैक्यूना है, कमी है, जिसके कारण अल्बिनिज्म डेवलप हो सकता है. बट एज दिस इज ए जेनेटिक डिजीज, चरक ने भी अष्टोनिंदितीय में इसकी चिकित्सा नहीं बताई. So because of this absence of melanin, almost all people with albinism are visually impaired and are, or otherwise they are prone to develop skin cancer. ये ऐसे लोग जो है वो, उनको धूप से ज्यादा दिक्कत होती है, स्किन कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है, और सूर्य प्रकाश से भी उनकी आंखों में प्रभाव पड़ सकता है. There is no cure for the absence of melanin that is central to albinism. While numbers vary,
It is estimated that North America and Europe, 1 in every 17,000 to 20,000 people have some form of albinism. Albinism के बहुत सारे प्रकार है. Complete albinism हो सकता है, only ocular हो सकता है, सिर्फ आंखों में हो सकता है, oculocutaneous हो सकता है. तो इस तरह से अलग अलग किसी के सिर्फ बालों में होता है. तो there are so many degrees variations of albinism. और ये सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में है, हालांकि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड पाया जाता है. So health challenges of the people living with albinism are there, as I told you कि skin के लिए, आंखों के लिए उनको special care चाहिए. Because of lack of melanin in skin and eyes, person with albinism often have permanent visual impairment. Sometimes they also face discrimination due to their skin color. ये तो एक health challenge हो गया, एक social challenge भी है कि उनको discriminate कर दिया जाता है. They are often subject to multiple and intersecting discrimination on the grounds both disability and color. And the term person with albinism is preferred to albino. इनको albino कहा जाता है. Actually albino is a kind of rat. वो जो white color का rat होता है उसको albino कहते हैं. And it is oftenly as a derogatory term, albino is used for these persons. And the United Nations, they have very strictly now said that these persons should not be termed as albino. They should be called as person with albinism. So they are not ghosts, but they are human beings. ये कोई भूत प्रेत नहीं. इनको इस तरह से भी देखा जाता है जनरल पब्लिक, सिर्फ जनरल पब्लिक में नहीं, पढ़े लिखे जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनका प्रगतिकरण हो गया है, ऐसा हम मानते हैं, उन ऐसे देशों में भी इनको घोस्ट माना जाता है. सो द वर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन against persons with albinism is their dehumanization. उनको मानवीय अधिकार भी बहुत बार नहीं दिया जाता है, which lays the foundation for horrifying physical attacks against them, because some believe that they are the magical beings or ghosts. They mutilate or even kill them, so their body parts can be used for witchcraft rituals. तांत्रिक विद्याओं के लिए इनके body parts को बाद में मार के use किया जाता है. So people with albinism, they face multiple forms of discrimination worldwide. So the women who give birth to children with albinism are often repudiated by their husbands and their family. And these are all registered cases. ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही उनके exaggerate करके बता रहे हैं, but these are all the registered cases. जिस महिलाओं को, ऐसे बच्चों को जो जन्म देती है, उनको फैमिली से बॉयकॉट कर दिया जाता है, समाज से बॉयकॉट कर दिया जाता है, along with the children. Further, उनके जो children with albinism are frequently abandoned by their parents. ऐसे बच्चों को पेरेंट्स खुद छोड़ देते हैं. More sporadically, the victims of infanticide, मार भी देते हैं जो infants होते हैं उनको. So because of the appearance of the skin, these are all just the cosmetic viewpoint. The deeply entrenched prejudices they face worldwide also impede persons with albinism from accessing adequate health care, social services. Even the schools, they don't sometimes get the basic right to education as well. So these are certain things mentioned on the screen. So beyond the myths and with their rights, people with albinisms are human beings. That is to be remembered. That's the tagline. What the today's title is. Albinism is care and concern. One should be concerned about these human beings rather than to torture them. Attacks against the people with albinism are met with indifference. अगर उनके साथ कोई गुनाह भी किया जाता है तो उस गुनाह के लिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है. That's what the report says. The impunity of killings and attacks against persons with albinism is concerned.
While some investigation and prosecution seem to take place, sentencing appears to be rare. Victims face significant difficulties in bringing their cases to justice. से लोगों को न्याय मिलना, उनके खिलाफ कुदरत ने एक अन्याय किया, उसके आगे समाज एक अन्याय करता है, और उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो भी न्याय मिलता नहीं. Coming back to the overview of albinism, the term albinism usually refers to oculocutaneous, that's what I was telling. आंख और skin दोनों में जब होता है. So OCA is a group of disorders passed down in families where the body makes little or none of a substance called melanin. The type and amount of melanin in the body determines the color of the skin, hair, and eyes. Melanin also plays a role in the development and function of the eyes. So these people, they have vision problems very frequently. Symptoms of albinism are usually seen in a person's skin, hair, and eye color. Sometimes differences are slight, but most of the times all the three, the hair, the skin, and the eyes are all the three are affected. People with albinism are also sensitive to the effects of the sun, so they are at high risk of getting skin cancer. Although there is no cure, people with these disorders can take steps to protect their skin and eyes and get proper eye and skin care. अभी हम देखेंगे कि इनका कोई क्योर नहीं है, लेकिन तब भी अल्बिनिज्म वाले लोग भी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए. सिम्टम्स जैसे हमने कहा, लक्षणों में इसमें स्किन, हेयर और आई के कलर और विजन, उनकी जो देखने की क्षमता है, उस पर भी प्रभाव देख सकते हैं. स्किन, द easiest form of albinism to see results in white hair and very light colored skin compared with the siblings or other blood relatives. But skin coloring, also called pigmentation, and hair color can range from white to brown. सबको white ही हो जाता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को बहुत ही brownish color के बाल हो जाना ये भी पाया गया. People of African descent who have albinism may have skin that is light brown or red brown and have freckles. For some people, skin color may be nearly the same as that of parents or siblings without albinism. कुछ लोगों में albinism होते हुए भी skin का color nearly same रहता है, सिर्फ हल्का सा बालों का या आंखों का कलर इतना भी हो सकता है. या जब when they are exposed to sun, they may develop freckles, moles, or the red patches, pink patches, large freckle-like spots called the solar lentines, sunburn, or the no ability to tan. Skin कितनी भी sun में रहे, सूर्य प्रकाश में रहे, वो काली नहीं होती. There's no tanning of the skin. For some people with albinism, skin coloring never changes. For others, melanin production may begin or increase during childhood and the teen years, resulting in slight changes in color. शुरुआत की जो जीवन यात्रा है, उसमें melanin बनता है, हल्का सा बढ़ भी सकता है, और फिर later on उनका कलर फिर आगे बढ़ता नहीं है. तो इस तरह से पूरे व्हाइट नहीं हो जाते, वो स्लाइट ब्राउनिश कलर के भी हो सकते. Hair color can range from white to brown. People in Africa or Asia descent who have albinism may have hair color that's yellow, red, or brown. So the color also may darken by early adulthood, or hair may stain from contact with minerals in water and environment, making hair appear darker with age. तो आजकल तो जो हेयर कलर वगैरह भी किया जा सकता है. So sometimes the hair color may not be the direct indicative of the diagnosis for albinism. Eye color, ये सबसे अच्छा तरीका है diagnosis for the albinism is the skin color and eye color. Eyelashes, eyebrows are also often pale. Eye color can range again from very light blue to brown and may change with age. बहुत बार एक ही आंख में color change होता है, एक तरफ का जो है वो सही होता है. With albinism, the colored parts of the eyes, which we call iris, usually don't have enough pigment.
So this allows light to shine through the iris and make the eyes extremely sensitive to bright light. Because of these, very light colored eyes may appear red in some lighting. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक आंख का कलर नॉर्मल है, एक का अल्बिनिज्म वाला है। एंड जब आंख के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिरता है और जब आइरिस में पिगमेंट नहीं होता, सो दिस लाइट डायरेक्टली एंटर्स ऑन द मतलब रेटाइना के ऊपर डायरेक्ट फोकस होने के कारण दीज पीपल दे आल्सो फेस द विजन प्रॉब्लम्स लाइक निस्टेग्मस, the rapid movement of the eyes that cannot be controlled, an uncommon head position or head posture such as tilting the head to try to reduce the eye movements and see better, eyes that can't look at some same direction at the same time, or they appear to be crossed, which we call it strabismus, problems seeing near objects or far objects called far-sightedness or near-sightedness. तो अलग-अलग range from minor to major problems of the vision may be faced by the people having albinism in the eyes. So extreme sensitivity to eye called photophobia may be there. So starting from photophobia, strabismus, near-sightedness, far-sightedness, nystagmus, ऐसा बहुत कुछ. They can also have blurred vision, reduced vision. They also can have a misrouting of the optic nerve, poor depth perception, which means not being able to see things in 3 dimensions and judge how far an object is. ये भी उनका गर्दन tilt रहता है because they, as far as possible, they want to protect their eyes from the direct sunlight. The legal blindness, vision less than 20/200 or complete blindness also may be found in the people with albinism. What are the causes? As previously we discussed, autosomal recessive inheritance pattern is the main cause, and the several genes give instructions for making one of the several proteins involved in producing melanin. ये सारी साइंटिफिक बातें हैं कि मेलानिन बनाने वाले जो जीन्स है, जो प्रोटीन है, वो बनते नहीं है, और जो मेलानोसाइट्स जो मेलानिन बनाते हैं, which is found in the eyes, hair and skin, उसमें मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता. In this figure on the right side of the screen, you can see that it is the father there may be unaffected child जो ना carrier है ना उसको albinism है. There may be unaffected carrier child. There may be unaffected carrier child, girl child, boy child, or the fourth possibility is there may be affected girl child. So these are all the causes, the gene mutation, autosomal recessive inheritance pattern, this is called as. Now coming to the types of albinism, the albinism is grouped based on how they are passed down in the families and on the gene that is affected. Grouped based on how they are passed down in families on the genes, they are oculocutaneous, ocular, and albinism related to rare hereditary syndromes may also occur. Like these are the further complications also, like there may be bleeding and bruising problems, and the lung and the bowel diseases may be there. Chidiac-Higashi syndrome includes a form of this oculocutaneous albinism, as well as immune problems will be there with recurrent infection, problems with brain and nerves, bleeding disorders and other serious issues. ये बहुत further जो stage है जिसमें complications भी बहुत often होते हैं. So these are the complications. The eyes complication we already discussed. The vision can, there may be problem with vision, and this may lead to impacted learning, even employment, बेरोजगारी हो जाती है, and
they cannot drive the vehicles properly. Skin complications, they have very sensitive skin, which is sensitive towards light and sun. Sunburn is one of the most serious and often occurring complications of albinism, the complication of skin. Sun exposure can cause sun damage, which may result in rough and thickened skin. Sunburn can also increase the risk of developing skin cancer. So छोटा सा sunburn से लेके cancer तक कुछ भी उनके skin में हो सकता है. Skin hard हो सकती है, melanoma हो सकता है. Then social and emotional challenges are also there. जहां से हमने शुरू किया था, ये awareness लाने का ये एक डे, इसके सिर्फ awareness के लिए इसलिए मनाया जा रहा है कि वो जो social challenges है, public challenge है, उनको तो कम से कम address कर दिया जाए. So some people with albinism may experience discrimination. Reaction of other people to those with albinism can have a negative impact on the people with this condition. People with albinism may experience bullying, teasing, unwanted questions about their appearance, eyewear or visual aid tools. उनको ऐसे बच्चों को भी बार बार जो classmates पूछते हैं, तू ऐसा काला चश्मा क्यों पहनता है? So they have to face so many questions. तुम ऐसे गोरे गोरे क्यों दिखते हो? They may look different from other members of their own families. School में ही क्यों, class में ही क्यों, घर में ही they are different. So from there, along with the siblings, they face these challenge, and the self-esteem is very deeply affected. So they may feel like outsiders in their own house. These experiences may cause social isolation, poor self-esteem, and stress. So using the term person with albinism is preferred then over calling them albinos to avoid the negative impact of other terms. How can this be prevented? There is no cure, as we all know. There's only care. I repeat again and again. But this can be prevented. If a family member has albinism, so a genetic counselor can help such couples to understand the type of albinism, chances of having a future child with albinism, and they can also undergo some genetic tests to know that whether the next generation will carry this disease, the cursed condition. और यहाँ पर आयुर्वेद के जो प्रजास्थापन गण की औषधियां, जैसे सीपी शुक्ल, आदरणीय स्वर्गवासी सीपी शुक्ल सर हमेशा बोलते थे कि किसी भी जेनेटिक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, इफ द कपल इज प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, तो बिफोर कंसेप्शन इटसेल्फ बोथ द कपल्स दे शुड बी गिवन विद प्रजास्थापन गण और शुक्र शोधन गण, आर्तव जनन शोधन गण, so that at least even though they are carriers, they will not pass it on to the next generation. A diagnosis of albinism is based on a physical exam that includes checking the skin and hair pigmentation. Very simple diagnosis is through skin and the pigmentation of the hairs, eyes and all. A thorough eye exam should be done. Comparison with the siblings can also be one of the diagnostic measures. The child's medical history, including whether there has been bleeding that doesn't stop, frequent or large bruises, scars on the skin or unexpected infections. These past history also can be a clue to diagnose albinism. A specialist in vision and eye disorders, which we call ophthalmologists, usually should do the child's exam. The exam includes an assessment using tools to look at the retina and determine if there are signs of problems with eye development of function. There is photophobia. So these the ophthalmologist can test. Genetic testing, of course, the last resource है ये कि genetic उनके gene का भी एक testing RNA sequencing करके DNA test करा लिया जाए. And the risk of passing down the gene change to children can be diagnosed or avoided. Treatment, as if there's no cure,
but it can, of course, the care can be given. So it's a genetic disorder. Currently, there's no cure. Treatment focuses on getting proper eye care, monitoring the skin for problems. The care team may include the primary care provider, the ophthalmologist, and a dermatologist. These integrated approach of three specialties can care and compensate such conditions. Specialist in genetics can help identify the specific type of albinism. This information can help guide care. किस लेवल का अल्बिनिज्म है ये जेनेटिक टेस्टिंग के बाद पता चल जाएगा, so that you can identify कि भविष्य में इनको किस कौन सा complication होने की possibility है, and the risk also can be determined in the future children. Treatment includes eye care, skin care. Eye care के लिए जैसे receiving an eye exam at least every year. You may also require the sunglasses or lenses to help with the vision problem. Surgery is rarely the recommended treatment. So they will not recommend or go for the surgery on eye muscles. But sometimes if there's a lot of problem caused by nystagmus, बहुत सारा उन्मेष निमेष हो रहा है, वहां पर वो मसल को करेक्शन करके सर्जरी से ठीक किया जा सकता है. स्किन केयर के लिए वो सनबर्न अवॉइड करने के लिए सनस्क्रीन लोशंस और ये जो शीत वीर्यात्मक जो लेप वगैरह, that may be aggressively applied, and बहुत बार otherwise it may cause to skin cancer called melanoma. So these are the things one should take care of. So people with Hermansky Pudlak or Chidiac Higashi syndromes usually need regular specialized care for medical problems, like they have often bleeding from the nose, and these complications also need to be managed along with the skin care and eye care. There are some lifestyle modifications should be done so that the child can learn self-practice, and this self-practice should also continue in the adulthood. Use low vision aids such as handheld magnifying glass. बहुत सारा ये जो स्क्रीन टाइम उनका कम हो या ग्लेयर करने वाले जो विजुअल एड्स है उनका कम से कम उपयोग किया जाए. Telescope or magnifier that attaches to the glasses can be used. Another aid is a tablet connected to a digital whiteboard in the classroom. ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल बोर्ड्स होते हैं, व्हाइट बोर्ड्स होते हैं. Generally not on the dark boards is not written. This is an interactive electronic board with the touch screen. Always use sunscreen with the sun protection SPF of 30 or greater that protects against the ultraviolet and ultraviolet A and B light that has to be applied on the skin. Strictly avoid high risk of lengthy sun exposure. Don't carry the child outside for long periods of time, or at least in the midday. दोपहर के टाइम पे at high altitudes or near the water दोपहर के समय नहीं ले जाना है, and on sunny days with thin cloud cover. Wear protective clothing. All the body parts including hands and all should be covered when you go out in the sun. So long sleeves, collared shirts, long pants and socks, broad brimmed hats, and special UV protection clothing are also available these days. Protect the eyes by wearing dark UV blocking sunglasses. Another option is transition lenses called photochromic lenses. These are also available nowadays, which darken the bright light. जो bright light अंदर आने से पहले ही उसको काला dark कर दिया जाता है because of these lenses. So in the school, in the home, in the family, in the society, these people should be supported well. The school may also make some changes. The office also may require to make some changes. If your child has albinism, begin early to work with teachers and school leaders to find ways to help your child adapt to classroom learning.
If necessary, start with educating the school staff about albinism and how it affects your child. Ask what services the school offers to assess and meet needs. Like the changes can be done, a seat near the front, a large print textbook or tablet जो बड़े बड़े अक्षरों को छापे, ऐसी टेक्स्ट बुक इनके लिए स्पेशली प्रिंट कर ली जा सकती है. A tablet computer that can be synced to an interactive whiteboard at front of the room. टैबलेट हाथ में लेके और उसको जो व्हाइट बोर्ड के साथ सिंक्रोनाइज करके the child can study in the tab whatever is going on the whiteboard. Handouts of the content written on the boards or overhead screens. हाथ में जो वहां स्क्रीन पे है, पीपीटी पे है, उसका हैंडआउट्स लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ दिया जा सकता है. हाई कॉन्ट्रास्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सच एज ब्लैक टाइप्ड ऑन द व्हाइट पेपर rather than using color print or paper can be replaced. Making the font size bigger, avoiding bright light, allowing extra time for taking the notes, taking the test or reading material may be permitted for such children. And many of the same changes can be made in the work setting also, in the offices also. Consider educating supervisors and co-workers in the workplace to help understand their needs. Coping with their emotional and social issues are also there. Encourage the child to talk about their experiences and feelings. They are not mad, they are not dumb. वो मंद बुद्धि वाले नहीं, बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले होते हैं और इसलिए उनके एक्सपीरियंस, उनके फीलिंग्स को शेयर करें. वो हम उनको सुने एज पेरेंट्स, एज को-वर्कर्स, कलीग्स, टीचर्स, friends. That's very important. Practice responses to teasing or embarrassing questions. उनको उनकी जो खामियां है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कोई भी ना करें. ये भी, this also will be a help to them. Find a peer support group or online community through agencies. There are NGOs like there's a national organization for albinism and hypopigmentation. Such agency के साथ उनको रेगुलर connected रखा जाए तो then they will have a impression that there are many people suffering with the same problem and this is not their fault. Talk to a mental health professional who can help you and the child develop healthy communication and coping skills if needed. So a voice for people with albinism. The United Nations Human Rights Council and the African Commission on Human and People Rights, they adopted resolutions and since ages, this resolutions, various acts are being coming in the practice. They are being amended, modified, and some new things are added. And finally, on 18th December 2014, the General Assembly of United Nations, they adopted resolutions which came into effect from 13 June 2015. Then onwards, this day is celebrated as International Albinism Awareness Day. So this will give a voice to help people with albinism and contribute to their protection through greater awareness raising, annual reporting at the Human Rights Council on specific concerns of albinism, and the provision of advisory services and technical assistance to the member states of United Nations in order for them to implement specific measures for protection of persons with albinism purview, their borders. So as I was telling, the last part of the slides will contain the examples of the accomplished people. ये ऐसे लोगों, ऐसे exemplary लोग हैं, they are the role models जिनको अल्बिनिज्म होते हुए भी वो बहुत ही आगे तक प्रखरता तक गए हुए. उसमें से एक है कोनिशु. शी इज सिंगर एंड मॉडल फ्रॉम चाइना. अपनी फैमिली में ये 4th चाइल्ड, अपने सिबलिंग में ये 4th नंबर का बच्चा है और पहले के तीनों को दे आर ऑल नॉर्मल. सिर्फ इसी को जब ये अल्बिनिज्म डिटेक्ट हुआ, देन शी, उसको बहुत सारे
she had the attacks of stress and depression and fatigue and everything, teasing, bullying, and once one of her mentor, who was also having albinism, she helped her. And then later on, she started her fashion modeling career. She is a model. Can you believe? At the age of 24, she became a model. By working with French designer, she became a model. I mean, she started as a model, and now the Connie juggles modeling with her singing career. She sings also. वो jazz singer है, and she is invited to perform at major events, jazz clubs. Another example is Carrie Gallagher. She's an athlete, first Briton to win a Winter Paralympics gold medal for the Super G race at Sochi 2014. She is an alpine sky racer from Northern Ireland with oculocutaneous albinism, which causes her to be visually impaired. But skiing with Charlotte Evans as a guide, she won Great Britain's first ever gold medal. तो अगर कोई चाहे तो क्या नहीं हो सकता, और हम लोग चाहे तो ऐसे लोगों को भी हम आगे ला सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं. She says, for me to be involved in helping make life better for people is an amazing byproduct of competing in sport. That's what Kelly says. Sean Rose, he is also a fashion model actor. I think he is from Nigeria. He graced the pages of major fashion publications and featured in campaigns and runaway shows of top designers in native United States as well as internationally. So in My Skin I Win, this is what was his tagline. He had generated a movement named like this. And this movement was to encourage individuals to self-acceptance, learn self-acceptance. So in The Skin I Win. Then Dr. Shari Parker, she is a medical practitioner and rehabilitation physician, president of the World Albinism Alliance and secretary of the Albinism Fellowship of Australia. So growing up, this doctor wanted to prove to herself and the world that she wasn't different. तो एक डॉक्टर बन गई वो. She is a medical practitioner. So ऐसे लोग, उनमें कमी कुछ नहीं होती, सिर्फ चमड़ी का कलर, और वो भी कुदरत का या माँ बाप के तरफ से जीन्स में मिला हुआ है. They are not at all at fault. Peter Ash is founder and CEO of Under the Same Sun NGO. एक उनको भी अल्बिनिज्म है, उन्होंने अपने एक एनजीओ स्थापित की है जिसमें ऐसे अल्बिनिज्म वाले बच्चों को वो रखते हैं. He is CEO and he is the youngest of the family of the 3 boys. Peter and his younger brother are both the members of the family that have albinism. After obtaining a bachelor degree in theology, he undertook a decade-long career in church ministry as an ordained pastor. तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी संघर्ष गाथा, और आज they are at the top. Salif Keita, world renowned musician and activist from Mali, is one of the most influential musicians on the African continent, known as the golden voice of Africa. तो बताइए, ये अल्बिनिज्म वाले लोग जिनकी आवाज को हम इतना पसंद करते हैं, ग्लोबली उसको गोल्डन वॉइस ऑफ अफ्रीका कहा गया है, उनकी आवाज. तो उनकी चमड़ी को भी अपनाने में या उनको सोसाइटी में एक जगह देना, ये हमारा एक नैतिक धर्म बनता है. Deandra Forrest, she is also model and actress. She is African American model and actress. She is the first female model with albinism to be signed to a major modeling agency, जो करोड़ों में जिस एजेंसी ने इसको पे किया. Her striking beauty has caught the attention of many magazines and she has walked in numerous international fashion shows. Her passion for art and creativity has also drawn her into the world of acting. जेक एपेले, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है. इनका एक जो अल्बिनिज्म है वो अलग तरह का है, बट वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे. वो he is from Nigeria.
And he believes that Nigerians with albinism are on the verge of overcoming age-long social stigma and inequalities. That's the movement he generated. And he thanks to the advocacy efforts of the United Nations and with albinism. So this is and एशिया में भी एक एग्जांपल मैं देख रही थी कि महक सिद्दीकी, शी इज अ राइटर। जब ये छोटी थी तो उसको लगता था कि वो बहुत ही गोरी गोरी है, फेयर स्किन्ड है, ब्लॉन्ड हेयर्स लाइक द हीरोइंस, और उसके जो फेवरेट फेरी टेल्स और अरेबियन नाइट्स मूवीज की जो हीरोइंस है उसके जैसी वो लग रही थी। बट ऐसा वो खुद को इस तरह से परसीव कर रही थी, बट देन इट वाज hard to ignore the painful reality जब उनके idols were always pretty and popular, जबकि ये ugly and rejected अपने आप को feel कर रही थी। और धीरे धीरे she found the attention humiliating, always choosing to remain silent over acknowledging the condition, a tendency that continued well into her early 20s. She grew up wondering, why can't I read a book about someone with albinism? Why isn't there a movie where the hero or heroine has albinism and is not evil or magical but just regular or normal? हमारी मूवीज में भी ऐसे जो विलन्स वगैरह है वो ऐसे अल्बिनिज्म वाले कैरेक्टर, मतलब ऐसे लोगों को चूज किया जाता है। सो शी देन थॉट कि मैं ऐसी एक बुक लिखती हूँ। So this way she became a writer. She's from Asia. David brought back, he is a professor, academician hai, and he's also a person with the albinism. He's also a father, husband, university critic, what he himself says. So after his first week of school, the principal asked his mother if she thought that this guy be better in a special school. So his mother's one word answer was no. Pretty much ended that conversation. Normal बच्चों के साथ बैठ के normal स्कूल में पढ़े, प्रिंसिपल ने कहा कि इसको एक स्पेशल स्कूल में भेज दो, बट मदर सेड नो। तो तब से फैमिली के सपोर्ट के कारण ही सेज कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। मैं, मेरे खुद के बच्चे हैं, माय वाइफ इज देयर एंड आई एम आल्सो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सो विथ ऑल दीज love, compassion, empathy, dignity, shared values, relationships, their feelings be included, what we can generate is care, hope, and self-confidence in these people who are already cursed by the hands of Mother Nature. By our awareness drive, we can project positivity towards seeing these people as normal human beings who are also having the rights for basic human amenities, and this way we can raise their self-esteem. So thank you very much. With the empathy towards albinism, persons with albinism, and the empathy, sympathy for your own self, I end this talk. Thank you once again everyone for providing me this opportunity. और पुनः मैं आप सबको ये इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और डांस डे दोनों की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये इतनी पेशेंस के साथ मेरी बात को सुनने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Over to you, sir. आपने बहुत ही अच्छा किया मैडम। टाइम जरूर ज्यादा लगा, लेकिन आपको रोकने की ना तो इच्छा हुई और ना हिम्मत, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट था, इतना अच्छा कंटेंट था, इंस्पायरिंग कंटेंट। रियली आपका फ्लो, आपकी स्पीच, आपका कंटेंट नमन योग्य है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मैडम, ग्रेट। थैंक यू अग्निहोत्री सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर शर्मा जी। सही कहा आपने
हम आपको इनवाइट करें और फिर आपको रोके, ये तो संभव नहीं है, हमारी सदाशयता के खिलाफ है। हम अपने को गेस्ट नहीं स्पीकर से जरूर सर, ये माफी, तो आप जैसे गुरुजनों के कारण ही कुछ नहीं बोल नहीं, पा रहे हैं हम। लेकिन तो अपने, आपको ये पूरा ही अधिकार है। नहीं हाँ, नहीं, आप सॉरी कंटेंट हमने को थोड़ा अच्छा था, ज्यादा समय ले नहीं, लिया हम शायद। अपने जी को गेस्ट स्पीकर से जरूर सॉरी मांगते हैं कि हमने उनका समय लिया, क्योंकि दूसरी वेबिनार के लिए भी टाइम 9 बजे से शुरू था। आपने कंटेंट दिखाने के बाद मुझे उस डायलेमा में पहुंचा दिया कि हम स्टिल ये डिसाइड करने में असमर्थ हैं कि हम एल्बिनिज्म को डिजीज माने। हमारे हिसाब से तो ये केवल एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या ये कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटस बनता है। हाँ, हमें दो काम करने हैं, एक तो एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशंस में न जाने पाए, नंबर 1, और नंबर 2, सोसाइटी में ऐसी अवेयरनेस फैलाएं कि इससे डिस्टेंस न रखने की बात आए, बच्चे से आपने कहा बुलिंग करें या करें, वो न होने पाए। रेस्ट ऑन गोइंग प्रोसेस में अगर आईज की प्रॉब्लम आती है या दूसरी चीजें हैं, हम डायरेक्ट सनरेज से बचाएं, वो सब ठीक है, अन्यथा दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड दे आर पार्ट एंड दे हैव गॉट फुल राइट टू लिव। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू पवन शर्मा जी। Thank you ji, thank you very much. Now I would like to invite Jayant Nagar ji. Jayant ji, namaskar. नमस्ते सर। सभी विद्वत नमस्कार। जनों को, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। प्रणाम, और प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर को मेरा प्रणाम। सर मेरे अभिभावक भी हैं, अग्रज भी हैं, पीएचयू से हैं, तो मैं नमन करता हूं सर को। मैं शुरू करता हूं आज का जो हमारा विशेष प्रयोजन है उसको। स्लाइड दिख रही है सर मेरी? एक बार मैं जान लेना चाहता हूँ। जी जी सर, थैंक यू। एल्बिनिज्म थोड़ा और हम समय जरूर ख्याल रखिएगा, जिससे कि सभी वक्ताओं बिल्कुल के सर, विचार आ जाएं और हमारी दूसरी वेबिनार भी बिल्कुल थोड़ा 10 मिनट लेट शुरू हो जाए, लेकिन हो जाए, है ना। और लोग भी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को भी, सब बच्चे वाले हैं और सब डिनर भी देखना है, प्लीज, है ना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मैं संक्षिप्त में अपनी जो शास्त्र की भावना है वो रख देता हूँ। और जो कुछ तो आ चुका है ना, जो कुछ आ चुका उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, मैं कर दिया, जी सर स्किप कर दिया हूँ। मैं सीधा शास्त्र की भावना रखता हूँ कि वर्ण कहाँ से मिलता है। शास्त्र में अलग जगह रेफरेंस मिलते हैं, तेज महाभूत वर्ण में, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः हम वर्ण की बात कर रहे हैं। ये एल्बिनिज्म में है कि हमको वर्ण जो तेज महाभूत से जो पित्त की वजह से जो पाक होता है त्वचा का, वो हो नहीं पाया एक तरह से, तो त्वचा में पाक होना रह गया और कोई कलर नहीं मिला, तो रंगहीनता या जो एल्बिनिज्म आया। ठीक, उसके बाद गर्भकर भाव में वर्ण कहाँ से मिलता है, वो है आत्मज और सात्मज भाव। तो मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ये जेनेटिक है, और जेनेटिक में कहीं ना कहीं कर्म रोल करते हैं। हमको कर्म की थ्योरी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कर्म की थ्योरी को मानेंगे तो ही कर्मों के प्रति संवेदनशील हो पाएंगे। अगर हम कर्मों को नकार देंगे या हम कहने से डरेंगे कि कर्मज नहीं है, तो फिर लोग कर्मों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। इसलिए एक घर में अगर दो बच्चे हो रहे हैं तो दोनों एल्बिनिज्म नहीं होते हैं। एक आत्मा जो है सामान्य शरीर लेकर आती है और एक आत्मा को एल्बिनिज्म मिल जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं उस आत्मा के, उसकी जर्नी के कर्म एक्युमुलेट रहे होंगे निश्चित रूप से। दूसरा कारण जो है गर्भकर भाव में वर्ण देने के लिए वो सात्मज बोला है। फिर हम यहाँ पित्त को, भ्राजक पित्त को वर्ण का कारण मानते हैं, और अपने यहाँ चरक संहिता में अष्टनिंदित अध्याय में अतिगोर एक निंदित करके माना है। निंदित क्योंकि वो चिकित्सा में भी है और समाज की दृष्टि से, लोगों में भावनाओं की दृष्टि से है। हम एक वैद्य, एक मैच्योर होके हम निष्पक्ष रूप से सोचेंगे तो हमको नहीं लगेगा, लेकिन एक सामान्य जनमानस में ये भावना है। ये क्यों आती है भावना, ये भी इसके पीछे भी कर्म के कारण है। आचार्य सुश्रुत ने वर्ण कैसे बनते हैं तो वो बताया है। साथ में वहां उन्होंने ये भी लिखा है, कुछ आचार्य मानते हैं कि गर्भिणी जैसा आहार सेवन करती है वैसा वर्ण जो है वो गर्भस्थ शिशु को मिलता है। तो मुझे यहाँ से एक संकेत मिल रहा है कि ये कर्मज या जेनेटिक होने के साथ साथ एक्यूमुलेटेड भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। अगर गर्भिणी मिथ्या आहार विहार का सेवन करे, गर्भिणी विरुद्ध आहार का सेवन करेगी, तो शायद इस वजह से भी उनको एल्बिनिज्म मिल सकता है, या उस आत्मा के जो कर्म है वो भी उसमें कारण हो सकते हैं। कंसर्न में हम देखें, सबसे पहले तो सोशल स्टिग्मा है। तो समाज में एक भ्रांति है या लोगों के प्रति एक पूर्वाग्रह होता है वर्ण को लेकर, कि वो थोड़ा अलग दिखते हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
लेकिन मैं ज्योतिष की नजर से भी देखूं तो कहीं ना कहीं उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में उस भाव को लेकर विशेष प्रदर्शन किया होगा या किसी को आहत किया होगा, तो इसलिए जो है आज उसे वो मानसिक वेदना मिल रही है, इसमें कारण हो सकता है। और ये हमें समझना चाहिए, तभी हम जो है कर्मों के प्रति संवेदनशील बनेंगे कि जो वर्ण है, जो रंग है और जो विशेषता है वो सब हमारे कर्मों से मिलती है हमको। तो हमें उसके प्रति अहंकार का भाव नहीं रखकर प्रकृति के प्रति कॉम्पेशन और दूसरे लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। ये सबक हमें मिलता है इन चीजों से। साइकोलॉजिकल होता है, लोग कॉस्मेटिक के डरते हैं, विशेषकर अगर महिलाओं में हो तो शादी में दिक्कत आती है, इसलिए कॉस्मेटिक परचेज वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देता है। एक इसका कारण से जो है फोटोफोबिया, लोग जो है डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। त्वचा में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेलेनिन पिगमेंट है वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, अगर मेलेनिन नहीं हो पाता है तो कार्सिनोजेनिक देखने को मिलता है। स्किन कॉस्मेटिक पर्पज से जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। उसके बाद में सीधे हम आते हैं कि केयर पर कैसे बात करें। तो सबसे पहले तो जो एल्बिनिज्म का पेशेंट है या जो एल्बिनिज्म है, पेशेंट नहीं बोलेंगे, जो सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है, उसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस तब होगी जब हम लोगों को कर्मों के लेवल पे काउंसलिंग कर पाएंगे। हम हमेशा हम डरते हैं ये कहने से कि समाज क्या सोचेगा, देखो कैसे कह रहे हैं कि कर्मों से होता है क्या, पाप से होता है कि नहीं। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो हमें मिला है, हो सकता है जेनेटिक हो सकता है कोई और कारण हो, या हो सकता है हमारे अपने एक्यूमुलेटेड कर्म हो जो हमें किसी न किसी फॉर्म में मानसिक वेदना देने के लिए आए हो। तो जस्ट एक्सेप्ट कि हम जैसे हैं उसको वैसे एक्सेप्ट करें और हम जो बेहतर कर सकते हैं उसको करते हुए चलें, ठीक है। और जो हमें मिल रहा है सुख या दुख के रूप में, वेदनाओं के रूप में, उन वेदनाओं को उसी फॉर्म में स्वीकार करें कि हाँ ठीक है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है, बुरा हो रहा है, ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे के लिए इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है दृष्टि एंड दृष्टिकोण। स्पिरिचुअल पाथ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करे, तो व्यक्ति वैराग्य में जाए, ईश्वर को समर्पित हो, या उसके मन में ऐसा भावना है कि कई लोग जो है वो समाज से परेशान होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग वैराग्य में चले जाते हैं। अगर वैराग्य में जाएंगे तो शायद उनके पास मौका अच्छा है कि वो ईश्वर के प्रति ज्यादा भक्ति भाव रख के ज्यादा कर्म करके अध्यात्म के रास्ते पर चले, क्योंकि समाज में वो जा नहीं रहे। और डिप्रेशन में चले जाएंगे तो सुसाइड करेंगे। तो कर्म कहने का मेरा जो हाईलाइट करने का है वो यही मकसद है कि वो वैराग्य की तरफ जाए, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाए, ताकि उस आत्मा के जो पुराने कर्म थे वो भी परिणाम हो, वो भी ठीक हो और उसकी आगे की जर्नी जो है वो अच्छी हो। आहार में हम देख सकते हैं कि वर्ण, जैसे सात्मज भाव में बोला है वहां पे आचार्य सुश्रुत ने कि सात्मज और आत्मज दोनों जो है वो वर्ण को देते हैं। तो हम वर्ण जो गर्भिणी है अपनी गर्भावस्थाओं में ठीक से जो सम्यक आहार विहार का पालन करे, मैद्याहार विहार का पालन करे। और जो व्यक्ति एल्बिनिज्म से पीड़ित है वो अपने जीवन काल में ऐसे आहार उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट हैं, जो फोटोफोबिया है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हैं, उनसे बचा जा सकता है। इसलिए आहार विहार ऐसे रखें जो सम्यक हो, पथ्य हो, मैद्य हो, वर्ण हो, कप को बढ़ाते हो, कप को सामान्य रखने वाले हो। और विहार प्रशम, प्रशम मतलब मानसिक शांति हो, प्लस ऐसी एक्टिविटीज ना हो जिससे बाहर, जैसे धूप का आतप सेवन, दधी सेवन या पित्त प्रदान चीजों का या कटु तीक्ष्ण उष्ण चीजों का अधिक सेवन ऐसे नहीं करें। स्किन केयर में सबसे पहले आता है कि हम स्किन को प्रोटेक्ट करें, स्किन को बचा के रखें, डायरेक्ट धूप में एक्सपोजर नहीं लें। साथ में जो सौम्य तेल हैं, जो कफ और वात शमन वाले तेल हैं, उनसे हम अभ्यंग कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। तेल ऑयल जो है वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपोजर से बेहतर है कि हम स्नेह का यूज करें। आई केयर में जो है सनग्लासेस का यूज करना, साथ में तर्पण का यूज करना, आंखों को ढक के हमेशा रखना और पहले से ही बचाव रखना। साथ में जो पित्त प्रदान हेतु है या जो नेत्र रोगों के हेतु हैं उनसे बचाव करना, क्योंकि इन लोगों को नेत्र रोग होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए प्रिवेंशन की दृष्टि से ऐसे हेतु का सेवन नहीं करें जो नेत्र रोगों के हेतु बताए हैं। लेजिस्लेशन में कि राज्य आश्रय होना चाहिए। लोग पहले ही, जैसे मोदी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, या उनके लिए कोई उनको अक्षम है, तो वो विकलांग नहीं है, वो दिव्यांग, उनको उनके एक्यूमुलेशन, उनके कर्मों के हिसाब से या जैसे भी है उनको विशेषता मिली है कुछ, इसलिए दिव्यांग बोला है। अगर वो लोग चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक सफर के लिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बेहतर कर सकते हैं वो, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति समाज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, ये लोग शायद समाज में इन्वॉल्व नहीं हो पाए, तो क्यों ना आध्यात्मिक रास्ते पर चले जाए। इसलिए इनको दिव्यांग कहना चाहिए और दिव्यांग के लिए सरकार को भी विशेष रूप से
जो है योजनाएं करनी चाहिए कि इनका, क्योंकि इनका जीवन अफेक्टेड होता है, ये मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, शारीरिक रूप से होते ही हैं, तो इनको जो है राज्य आश्रय मिलना चाहिए, भरण पोषण की इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, इनको जॉब मिल सके या एक बेसिक जो लिविंग है वो फैसिलिटीज इनको मिल सके। तो मेरा मेनली एल्बिनिज्म के लिए यही था कि हम इसे जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा स्वीकार करें और हम लोगों को समझाएं संवेदनाओं के प्रति, हम लोगों को समझाएं कर्मों के प्रति संवेदनशील होने को, ताकि कर्म की थ्योरी बहुत ही गहन है, बहुत ही गूढ़ है, और जहाँ जेनेटिक डिजीज आती है वहां पे कहीं ना कहीं कर्म रोल प्ले करता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इसे कहने से बचने की बजाय हमें लोगों को समझाना चाहिए ताकि हम समाज में बेहतर कर्मों को प्रमोट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। शाबाश 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 जयंत जी, गजब गजब मौलिक विचार हैं और गजब क्रांतिकारी विचार हैं। शाबाश, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ बेटे। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे विचार। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती सर, हमें जो भी मिला है वो हमारा अपना है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। जी सर, ठीक बोले, ठीक बोले। मैं अग्निहोत्री सर से आता, मैं उसके, हाँ जी अग्निहोत्री डॉक्टर जयंत जी, आपने एक नए ही पहलू को स्पर्श किया। ठीक है, आपने कर्म भावज विचार रखे इस प्रकार के किसी भी एनोमली के साथ में जन्म लेने पर, तो क्या आपकी सहमति होगी कि जितने भी कंजेनाइटल एनाटॉमिकल डिफेक्टेड प्रोजनी आते हैं, चाहे वो एक कुष्ठ के रूप में हो या किसी सकलांगता में कमी हो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का केस हो, ये जितने भी कुछ है, तो क्या वो कर्मजन्य पूर्व शरीर पूर्व में कर्मजन्य दोष हैं? तो ये एक पक्ष हो गया। लेकिन जहां तक अपने आयुर्वेदिक साइंसेज और मेडिकल साइंसेज की दखल है, वहां तक उसमें बहुत सहारा देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना तो किसी भी सकलांग और विकलांग दोनों के लिए है, उतने ही हमेशा फायदेमंद रहेगा। विकलांगता में उनको फोर्स नहीं करेंगे, सकलांगता वाले करते देखेंगे तो उनको भी मिलेगा कि जब सकलांग है और वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो हम तो ज्यादा उसके उचित पात्र हम करें। लेकिन जो शारीरिक विकार आते हैं उनका समाधान यथासंभव जरूर करते रहे। आपका धन्यवाद, आपने समय की मर्यादा रखी, इसलिए आप और प्रशंसा के पात्र हैं। नमस्कार। ओवर पॉइंट शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब मैडम पारुल जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। मैडम पारुल जोशी जी, शायद कनेक्शन कट हुआ है पारुल जोशी जी का। डॉक्टर आशीष फड़के जी, मैं फिर डॉक्टर आलोक शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कनेक्शन इनके कट हुए हैं, अभी तो जुड़े हुए थे। सर आ गए, हम दोबारा से लौट के इतना ना करें आप। प्रणाम 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 सर। लौट के आ गए सर। सर मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। अभी जयंत की कर्मज के ऊपर बोला। अभी मैं सोच रहा था कि आपने 13 जून जो आपने डे बनाया हैगा, अब आप देखिएगा सूर्य से संबंध इसका जो है व्याधि नहीं मतलब इसका कर्म का, कि 22 जून को पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य रहता हैगा, और सूर्य का और इस व्याधि का निश्चित रूप से एक रोल हैगा जो कर्म के हिसाब से, कर्म जो पूर्वजन्म के कर्म है उसके हिसाब से व्यक्ति में प्रतिपादित होता हैगा। क्योंकि जो भी सिम्टम है या जो सफेद रहना हैगा ये बाई बर्थ होता हैगा, इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और कोई हेतु नहीं मिलते हैं। इसको कर्मज हम उपद्रवी मानेंगे, व्याधि मानेंगे, लक्षण मानेंगे, जो भी हम कह रहे हैं। और मैंने एक प्रैक्टिकली देखा हैगा, मेरे साथ एक मेडिकल ऑफिसर थे, मेरे से सीनियर थे दिल्ली नगर निगम में। वो धूप में निकल नहीं पाते थे, दिन में बाहर आते नहीं थे, सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, शाम को निकलते थे। आंखों से उनको बड़ी प्रॉब्लम पड़ती थी देखने के अंदर, और वो बड़े आराम से फुल्ली लाइफ रिटायर होकर गए हैं पीसफुल्ली। जैसा आज ये डे के चक्कर में कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन कि सब सोशली मैनिपुलेशन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो कभी फील नहीं हुआ, आज इसी सामने आ रही है तो मुझे वो शेयर करना पड़ा है। हम ऐसा इम्पैक्ट ना बनाएं, और ऐसा है कि इसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, कर्मज व्याधियों में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर करने का अध्ययन ये तो मैं जैन जी से करूंगा कि ऐसे अगर कुछ व्यक्ति मिलते हैं, मैं रोगी नहीं कहूंगा, उनके सूर्य का
और 10वें स्थान का अध्ययन करें तो कुछ विकार जी जरूर सर। मिलेगा, क्योंकि दिस इज माई आल्सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पार्ट मिलेगा। अगर हम उस रेंज से कुछ कार्य कर सकें तो बेटर रहेगा। और दूसरा एक उपाय जो मैं सोचता हूँ, विरंजनीय महाकषाय चरक का, अगर विरंजनीय महाकषाय का अगर जो करके देखें, क्योंकि संख्या बहुत कम मिलती है, बहुत कम आते हैं हाथ में, तो नेचुरली आज चिंतन तो करने के लिए पवन जी ने और हमारे अग्निहोत्री जी ने हमको कह दिया, पर रोगी तो बहुत कम मिलते हैं, व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं। अवेयरनेस हमें करना है कि सोशली वो अच्छे रहे, मोरली बूस्टिंग कर लें, पर सूर्य का 10वें स्थान का और विरंजनीय महाकषाय का अगर कॉम्बिनेशन में स्टडी करें तो हम आईवेस से इस फील्ड में कुछ दे सकते हैं। मेरा इतना से अनुरोध है। नमस्कार। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा विचार है। आपकी अनुभव का नमन है, आपके अनुभव को नमन है। और इसलिए और कि अब हमारे जयंत जो युवा साथी है उनके बात का समर्थन है तो और पुष्टिकारक हो गया। और जून का महीना 13 तारीख, सूर्य का स्थान, पृथ्वी का सूर्य से सामीप्य, सारी बातें एक ही तरफ ले जा रही हैं कि कर्मज भाव को इस जून के महीने में करके देखना। स्टडी होंगे तो आंसर मिलेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया में कम है, साउथ अफ्रीका और दूसरे शहरों में जो बताया यूएस में ज्यादा है, तो वो अलग विषय है। लेकिन हम लोगों को सजग रहे, अवेयरनेस का शब्द आया है ना, इस विषय में एक चीज आपको और बोलूंगा। आपने जो अमेरिका यूरोप की बात करी है कि मेरे पे एक फॉरेनर पेशेंट आया था लिकोडर्मा का, तो मैंने बड़ा चिंतन करा, उसको वाकुची और ये लगा के धूप में बैठना आएगा। मैंने कहा हट धूप, तो बोले जिस जगह मैं रहता हूँ धूप तो आती नहीं है। अब ऐसी ऐसी जगह जो धूप नहीं आती है, अगर वहाँ ऐसे रोगी नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिलेंगे भाई जो है, तो वहां तो मिलने ही मिलने आएंगे, तो फिर अगेन सूर्य से संबंध स्थापित हो रहा है। पर आयुर्वेद विश्व पटल में कुछ दे सकता है अगर जैन जी जैसे लोग, मतलब विरंजनीय माँ का शायद सूर्य 10वें स्थान पर कार्य कर जाए। तो मेरी तो उम्र हो चुकी, मैं क्या दे पाऊंगा मुझे पता नहीं, पर मुझे आज ही चिंतन मिला। मैं तो अग्निहोत्री जी का और पवन जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, मुझे सोचने का विषय मिला। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, आपका सोचने का विषय मिला और जयंत जी को एक मार्गदर्शन मिला। आज की हमारी वेबिनार का सार्थकता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पवन शर्मा जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पारुल जोशी जी अभी जुड़ी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये निशांत शुक्ला जी से आग्रह करता हूं, यदि मीरा कश्यप जी कुछ बोलना चाहते हैं। आदरणीय मीरा कश्यप जी कुछ बोलना चाहेंगे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करें, फिर हम नेक्स्ट वेबिनार शुरू करेंगे। इसके बाद जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नहीं सर, मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा विषय नहीं है ये, इसलिए मैं सोता हूँ आज। नहीं, आपको इसलिए इनवाइट किया कि आपको विचार आया हो तो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब तक आप शिफ्ट करिए, मैं कंक्लूजिंग करता हूँ इस विषय का। आप आज के अतिथि लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से हमारी मीरा भगदानी जी ने बहुत ही अच्छा किया, हमें अपेक्षा से अधिक ज्ञान दिया। और स्पेशली ये सोच के कि अगर हम इसमें कुछ कार्य करें, विशेष रूप से हमारे नव जातकों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जिनमें कोई हीन भावना न डेवलप होने पाए, और वो स्कूलों में, परिवार में, समाज में